Good morning, one and all. Today is 25th May 2021, and we'll be taking chapter 3 of parallel computing. Chapter 3 is principles of parallel algorithm design. So let's see the different principles of parallel algorithm design. Algorithm, as we know, is the problem solving solution to a problem written in a simple English language. Okay, step by step instructions. So we'll see the algorithm for the parallel design. So sequential algorithm is essentially a recipe or a sequence of basic steps for solving for solving a given problem. कोई एक given problem दी हुई है, उसका simple solutions algorithm में लिखना step by step. Okay, so parallel algorithm में भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में we have multiple processors. So given any problem regarding the multiple processors, we'll be writing the solution to that problem in a simple English language, one by one, step by step. Okay, so that basically when we are talking about the parallel algorithm, तो यहाँ पर हमारे पास में concurrency का जो concept है, that is execution of more than one instruction simultaneously. That concept arises, concurrency. So the algorithm should be in such a manner so that simultaneous execution of the instruction is possible. So just see, इसमें बहुत अच्छी चीजें दी हुई है. Non-trivial parallel algorithm may include some or all of the following. क्या चीज सबसे पहले है कि आपको कॉन्करेंसी चेक करनी है. आइडेंटिफाई पोर्शन ऑफ द वर्क दैट कैन बी परफॉर्म कॉन्करेंटली. कॉन्करेंटली का मीनिंग रहता है कि एक टास्क है, दूसरा टास्क है, दोनों टास्क साइमल्टेनियसली किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं. Either it may be performed, basically concurrency is performing two tasks simultaneously or more than one task simultaneously in time sharing mode. टाइम शेयरिंग मोड में एक से ज्यादा टास्क जो है वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच portion of the work should be performed simultaneously. First thing. Second is mapping the concurrent pieces of work into multiple processes running in parallel. मतलब पैरेलल में कितने प्रोसेसर्स इकट्ठे वर्क कर रहे हैं, कॉन्करेंटली वर्क कर रहे हैं, उन पैरेलल प्रोसेसर्स पे कितने टास्क पैरेलली वर्क कर रहे हैं. सो दीज थिंग्स वी नीड टू आइडेंटिफाई. देन इनपुट आउटपुट एंड इंटरमीडिएट डेटा एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम. प्रोग्राम अगर पूरा दिया हुआ है तो उसका इनपुट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड द इंटरमीडिएट कोड. देन मैनेजिंग एक्सेसेस टू डेटा शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स. मल्टीपल प्रोसेसर्स कौन सा शेयर्ड डेटा जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, सिमेफोर्स जिसको बोलते हैं. सो दैट इज द managing accesses of data shared by multiple processors. And the last fifth thing is synchronizing the processors at various stages of parallel program execution. अब क्या होगा जब हम concurrent processors की बात कर रहे हैं तो उनका synchronization भी जरूरी है. Synchronization means what? When it is being sent from the sender, it should be received to the receiver in the same sequence. मतलब अगर वो पैकेट के फॉर्म में जा रहा है या स्ट्रीम्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रहा है कम्युनिकेशन में, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली इट शुड बी सिंक्रोनाइज एट द डेस्टिनेशन. मींस जिस स्पीड से ये भेज रहा है सेंडर, उस स्पीड पे रिसीवर को रिसीव करना है. एंड पैकेट शुड बी इन द ऑर्डर, रीअसेंबल्ड ऑफ ऑर्डर. ordering of the packet is required. So several choices of each of the above steps, relatively few combination of the choices leads to the parallel algorithm that yields performance commensurate with the computational and storage resources employed to solve the problem. मतलब ये जो चीजें हैं, ये points जो हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो हम parallel computing algorithms we can write easily. So let's see what are the preliminaries we have to see when we talk about this. So dividing computation into smaller computation and assigning them to different processors for parallel. हाँ देखो parallel computation का कैसे वर्क होता है. parallel मतलब एक से ज्यादा टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म होना. तो जो बिगर प्रॉब्लम रहती है उन बिगर प्रॉब्लम्स को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डालना. जैसे अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो मॉड्यूल्स है, एक बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, एक बड़ा प्रॉब्लम है, केस स्टडी है, उसका सोल्यूशन जो है वो एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या एप्लीकेशन के फॉर्म में या ऐप के फॉर्म में बनाया जाता है. और उसको बनाने के लिए सिंगल पर्सन यूज नहीं होता है, एक टीम वर्क के थ्रू वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है. तो टीम वर्क में अगेन इट इज बीइंग सब डिवाइडेड, डिवाइडिंग द टास्क इनटू दीस टीम्स. तो टास्क क्या डिवाइड होता है, मॉड्यूल्स पे डिवाइड होते हैं.
तो एक मॉड्यूल का काम जो है एक टीम को दिया जाता है, दूसरे मॉड्यूल के ऊपर दूसरा वर्क करता है, तीसरे पे तीसरा, इस तरह से वो मॉड्यूल में डिवाइड होता है। और फाइनली जब वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन हो जाता है उसका सक्सेसफुली, तो सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग में भी क्या किया जाता है कि जो हमारा कंप्यूटेशन है, जो हमारा टास्क है, उसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड किया जाता है, उन स्मॉलर टास्क को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो स्मॉलर टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर वन। जो पहला मॉड्यूल है और सेकंड मॉड्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है, इस तरह से उसको वर्क फंक्शन किया जाता है, एंड देन फाइनली इट इज बीन इंटीग्रेटेड। सो दिस इज हाउ द पैरेलल वर्क। तो इसमें दो चीजें जो है टर्मिनोलॉजीज, टू की स्टेप्स इन द पैरेलल एल्गोरिथम डिजाइन जो है वो बात की हुई। दो एग्जांपल जो है, एक है मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग। ये दो एग्जांपल्स जो है पैरेलल एल्गोरिथम्स के, पैरेलल एल्गोरिथम डिजाइन जो है उसमें हमने एग्जांपल दिया हुआ है, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन and database query processing for parallel execution. Okay, now first thing is, as we have seen, that dividing the computation into smaller parts. So decomposition, task and dependency graphs. Let's see decomposition. Decomposition means again computation dividing a bigger problem into smaller problem is called as decomposition. ठीक है, ये डिकम्पोजिशन मीनिंग हुआ। टास्क का मीनिंग क्या हुआ? टास्क आर द प्रोग्रामर डिफाइंड यूनिट्स computation into which the main computation is subdivided by means of decomposition। जो मेन टास्क है, मेन प्रॉब्लम है, वो प्रोग्रामर के थ्रू छोटे छोटे कंप्यूटेशन, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है यूजिंग डिकम्पोजिशन। डिपेंडेंसी ग्राफ मतलब एक, अगर हम मॉड्यूल की बात करते हैं तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंटली वर्क होता है, बट इनका एग्जीक्यूशन पैरेलली होता है, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होता है, सो दैट मोर देन वन subtask can be executed simultaneously. So the task into which a problem is decomposed may not be of the same size। जरूरी नहीं है कि सबका साइज सेम होगा। तो हमने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिए थे पैरेलल एल्गोरिथम डिजाइन के, एक मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग। सो फर्स्ट इज दिस डिकम्पोजिशन ऑफ अ, ये वाला डेंस मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। So in this case, we have to consider, we consider n by n matrix, एक n by n matrix दिया हुआ है with vector b to yield another vector y. So the ith element y of I of the product vector is the dot product of the ith row and of a with the input। मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास में a of ij मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिया है, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, a of ij dot b of j from j is equal to 1 to n, and after multiplication it is being transferred into a vector array। ये एक वेक्टर एरे के फॉर्म में इसको ट्रांसफर किया। तो ये हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ डेंस मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इनटू n टास्क। मतलब हमारा जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट जो हम बात कर रहे थे कि how do we design a parallel algorithm, parallel computing algorithm। तो first method is designing using मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसमें डेंस मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ अ टास्क। एक टास्क दिया हुआ है, उस टास्क को डिकम्पोज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है सब टास्क में। कैसे डिवाइड किया जाता है? सपोज एक टास्क दिया हुआ है, उसको n टास्क में डिवाइड किया, मतलब हम n मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं। इन n मॉड्यूल्स को n डिफरेंट टीम्स जो है वो वर्क करेंगी और उनका टास्क जो है, सब टास्क जो है वो कंप्लीट करेंगी, मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगी, एंड देन फाइनली इट इज बीन इंटीग्रेटेड। सो n टास्क, n इज द नंबर ऑफ द रोज इन द मैट्रिक्स, n नंबर ऑफ द रोज मैट्रिक्स में है। ये रो हो गई आपकी टास्क 1, दिस इज टास्क 1, दिस इज टास्क 2, टास्क 3, एंड हियर अप टू nth रो टास्क n रो, एंड इट इज n by n। अब इसको जो टास्क है उसको भी सब डिवाइड किया हुआ है। इनपुट एंड आउटपुट वेक्टर एक्सेस्ड बाय टास्क 1 आर हाईलाइटेड। तो ये हमारा पहला वाला मैट्रिक्स है, ये सेकंड वाला मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास में ये थर्ड मैट्रिक्स डेवलप हुआ, विच इज एन एरे, सिंगल एरे हुआ। इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, एक फिगर आ गया यहाँ पर। सेकंड पूरा जो टास्क 2 है, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन इनटू दिस मल्टीप्लिकेशन, एंड वी विल गेट y of the next element।
सिमिलरली ये पूरा एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, दिस इज n by n मैट्रिक्स एंड दिस इज n by 1 मैट्रिक्स, n रोज एंड 1 मैट्रिक्स, 1 कॉलम। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमको n by 1 कॉलम मिल गया, n by 1 कॉलम, n by 1 का हमको मैट्रिक्स मिल गया, और ये एरे के फॉर्म में क्रिएट हो गया। तो क्या किया हमने, इस टास्क को हमने n डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया एंड फर्दर ईच टास्क इज बीन डिवाइडेड इनटू n डिफरेंट सब टास्क, सब टास्क और उसका डिवीजन किया है। सो दिस इज हाउ दिस मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लुक्स। ओके, अब यहाँ पर है टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। जो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ है, an abstraction used to express such dependency among tasks and their relative order of execution। मतलब जो हमने अब इसको डिवाइड किया है टास्क को, तो कुछ हो सकता है कि एक जो है वो दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंडेंट रहे या उसका पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल ना हो, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ की मे बी पॉसिबल दैट दिस टास्क इज बीइंग, मैं जो अब टास्क वर्ड बोल रही हूँ, मैं बिगर प्रॉब्लम का टास्क वर्ड नहीं बोल रही हूँ, मैं सब प्रॉब्लम का टास्क बोल रही हूँ। तो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर हम पूरा जो टास्क है उसको सब टास्क में जो हमने डिवाइड किया हुआ है उसका डिपेंडेंसी चेक करेंगे, और वहां पर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो है वो क्रिएट करेंगे, जहां पर हम नोड्स में रिप्रेजेंट करेंगे टास्क को, और जो डायरेक्टेड एज है वहां पर हम उसकी डिपेंडेंसी चेक करेंगे, ताकि जब हम पैरेलल एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमको ध्यान में रहेगा कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है। जो सेकेंड था प्रिंसिपल फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग एल्गोरिथम, दैट इज डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग। अब अगर हमारे पास में डेटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये दिया हुआ है कि एक रिलेशनल डेटाबेस ऑफ व्हीकल है, so each row of the table is a record that contains data corresponding to a particular vehicle, such as its id, model, year, color, etc. in various fields। so ये सब हमारे पास में उसके कॉलम्स की हेडिंग है, id, मॉडल, ईयर, कलर। तो हमारे पास में मॉडल की वैल्यू दी हुई है, ईयर की वैल्यू दी हुई है एंड कलर की वैल्यू दी हुई है, दिस कलर और ग्रीन कलर और व्हाइट कलर, ठीक है। सो हम क्वेरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सो like a table containing all civics, this query looks for all 2001 civics whose color is either green or white। तो ये क्वेरी क्या कर रही है, सारे के सारे select star from the table where model equal to civics and year equal to 2001 and color is either green or white। so depending upon this query it will give you the result, so it will give you the list of all those cars having the model civics 2001 model, color is either green or white। so a table containing all civics, a table containing all 2001 model cars, and a table of all green colored cars, and a table of all white color cars। so either green or white, all will be included, all, या तो green होनी चाहिए तो white होनी चाहिए। so this way the query construction is being done। so let's say a database storing information about used vehicles। so ये used vehicles है, ठीक है। अब इसमें से what will be the output, let's see। ये हमारा पूरा टेबल का डेटा है, ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने नीचे डिजाइन किया। तो पहले डेटा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, मॉडल इज आइदर सिविक, CIVIC, 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 4 रोज निकलेगी। ईयर इज 2001, सो दिस इज 2001, दिस इज 2001, ये 2001 नहीं है, ये वाला सिविक है पर 2001 नहीं है। एंड कंडीशन, बोथ द condition should be, so this is civic as well as 2001, this row will be included, this is civic and this is 2001, so 2 rows, and the color is either green or white, this is white, this is red, so only 1 row will be there। so civic 2001 white color, 17,000 price, dollar, $17,000 will be the price। okay, now let's see the different tables and their dependencies in a query processing operation। एक और अलग से टेबल लिया हमने, उसको query processing और operations देखने हैं। query processing means your this SQL queries। let's see here, civic and 2001, this condition,
civic as well as 2001. White color or green color car, so white or green color car, if you merge these two it will form the civic and 2001 and white or green color. Okay, so from the database just see मैंने आपको बताया ना एक ही रो आई है, देखो लास्ट में एक ही रो आई है, ओनली वन रो इज देयर। यहाँ पर सिविक नाम की ये 4 डेटा निकले, 2001 के ये दोनों निकले। ठीक है, अब इन दोनों का एंड ऑपरेशन किया तो हमको सिविक प्लस 2001 किसके लिए, कोड के लिए है 6734 civic and 2001। ठीक है, देन 4395 एंड 4395, तो 2 रोज निकलेगी इससे। सिमिलरली ग्रीन कलर और व्हाइट कलर के लिए ये हमारा ग्रीन कलर है और ये हमारा व्हाइट कलर, तो ये 4 + 2 6, ये पूरा 6 इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसको और इसको हमने एंड किया, दैट इज दोनों में क्या चीज कॉमन है, सिविक 2001, ठीक है, विद आईडी 6734, यहाँ पर आईडी 6734 है, व्हाइट कलर है 6734 सिविक 2001 व्हाइट कलर। अब 4395 यहाँ लिस्ट ही नहीं है, मतलब उसका कलर व्हाइट या ग्रीन नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही रो है, एक ही कार है जिसका सिविक मॉडल है, ईयर 2001 है और व्हाइट कलर की है। ओके, दिस इज क्वेरी प्रोसेसिंग। सो let's see an alternate data dependency graph for the query processing. Query processing का alternate way से कैसे किया हुआ है, इसमें यहाँ से लेते हैं white और green color, white और green color, so again this white and green color, इन दोनों को और लिया, और मतलब either this or this, तो दोनों का combination, all rows of this, all rows of this, so all will be included here 6। देन 2001 का के साथ में एंड ऑपरेशन किया, इसको और इसको 2001 के साथ में एंड ऑपरेशन किया, तो यहाँ पर कोड नंबर देखो 6734 2001 6734 व्हाइट कलर, ठीक है 6734 व्हाइट कलर 2001, 7623 2001 7623 ग्रीन कलर। ओके, देन 5342 और 5342, ये इसमें जो है और इसमें जो है कॉमन, क्योंकि ये वाला ले रहे हैं हम 2001 और कलर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एंड में ये दोनों को एंड किया तो यहाँ हमारे पास में आ गया, ये हमने ऑलरेडी एसक्यूएल में पढ़ चुके हैं यूजी में। एंड फाइनली इसको और इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, ओनली 7623, और कुछ भी कॉमन नहीं है, 7623 सिविक, बाकी ये दोनों सिविक नहीं है। 6734 है क्या, 67, हाँ 6734 है, 6734 है, 7352 नहीं है, 7623 है नहीं है, 5342 नहीं है, सिर्फ एक ही रो है 6734 सिविक, 6734 civic white 2001, 6734 civic 2001 white। So this way also you can do in the alternate way। Now let's see granularity, concurrency and task interaction using this dense matrix vector multiplication। Granularity means छोटे छोटे task, number and the size of the task into which a problem is decomposed determines the granularity of the decomposition। Granularity means जो हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ द टास्क है और उसका साइज क्या है, उससे हमको उसकी ग्रेनुलरिटी पता चलती है। तो डिकम्पोजिशन इनटू अ लार्ज number of small tasks is called fine grained, and decomposition into a small number of the large task is called as coarse grained। तो ग्रैनुलरिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अगर हमारे पास में 2 फैक्टर है, एक नंबर एक साइज, अगर हमने बहुत ज्यादा नंबर में एक बिगर टास्क को डिवाइड किया तो वो फाइन ग्रेन्ड हो गया, छोटे 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 बहुत सारे टास्क, और अगर हमने साइज की बात की तो कम पार्ट्स में डिवाइड किया, एक टास्क को सिर्फ हमने 2 ही में डिवाइड किया या 4 ही में डिवाइड किया और उसका साइज बड़ा कर दिया, तो वो कोर्स ग्रेन कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल ये दिया हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ डेंस मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इनटू 4 टास्क में डिवाइड किया हुआ है। The portion of the matrix and the input and the output vector accessed by task 1 are being highlighted। सिर्फ ये देखो यहाँ पर एक टास्क, ये 2 टास्क, ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4,
ठीक है, सिर्फ 4 में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। अब ये जो टास्क है इसको जो 4 में डिवाइड किया हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कोर्स ग्रेड। कोर्स ग्रेड में सिर्फ 4 ही में डिवाइड किया हुआ, दिस इनटू दिस विल गिव यू दीज वैल्यूज, ओके, simultaneously. So the portion of the matrix and the input and the output vector accessed by task 1 are being highlighted. ये task 1 के matrix को highlight किया हुआ है, ठीक है। Degree of concurrency. What do we mean by degree of concurrency? The concept related to granularity is the degree of is that of the degree of concurrency. The maximum number of the tasks that can be executed simultaneously in parallel program at any given time is known as maximum degree of concurrency. मतलब कितने टास्क जो है पैरेलल कंप्यूटिंग में एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी. So let's see this degree of concurrency. Abstraction of tasks graphs of figure 3.2 and 3.3 respectively. This figure A, this denotes the bigger task, task 7, ठीक है, task 1, task 2, task 3, task 4, ठीक है। ये दोनों टास्क जो है ये टास्क 5 में गए, ये दोनों टास्क जो है ये टास्क 6 में, छोटे छोटे छोटे, इन दोनों का मर्जिंग ये हो गया, इन दोनों का मर्जिंग ये हो गया, इन दोनों का मर्जिंग टास्क 7, ठीक है। So this first example, this is the abstraction of task graph. In the other case, task 1 2 3 4, तो ये पहले और दूसरे को ज्वाइन किया, फिर थर्ड टास्क और फिफ्थ टास्क को टास्क 6 बनाया, और ये टास्क 4 और टास्क 6 को ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारा टास्क 7 बना, ओके। So what do we mean by the critical path? A feature of the task dependency graph that determines the average degree of the concurrency for a given granularity is its critical path. मतलब कि टास्क डिपेंडेंसी का जो ग्राफ है वो अगर हमारी एवरेज डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी फॉर अ गिवन ग्रानुलरिटी बताता है, दैट इज अ क्रिटिकल पाथ. कितना एवरेज उसका कॉन्करेंसी है, कितने टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं थ्रू द पाथ, थ्रू दैट ग्रानुलरिटी इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पाथ. और उसकी लेंथ मतलब कितने पाथ है उसका, longest directed path between any pair of start and the finish nodes is called as the critical path, and the sum of the weights of nodes along this path is known as critical path length. sum इनका, जैसे अगर सपोज टास्क 1 से टास्क 7 की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये इसका क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है. Interaction means one task communicating with the other task. टास्क इंटरेक्शन ग्राफ जो होता है वो one task is interacting with the other task showing it in the form of a directed acyclic or cyclic graph. Then let's take the example of sparse matrix vector multiplication. Same, there is a vector array output which is created after the multiplication of two-dimensional matrix and a single column matrix. After you multiply, you get the sparse matrix. The SPARC sparse matrix ये होता है जिसमें maximum number of ones हो diagonally में maximum ones हो या filled हो. So decomposition of sparse matrix vector multiplication and the corresponding task interaction graph. ये ग्राफ है, ये डिकम्पोजिशन किया हुआ है इसको. तो आप देखो यहाँ पर किस तरह से डिकम्पोजिशन किया हुआ है. टास्क 0 0, टास्क 0 में ये 1 और ये 4, मतलब ये 1 से कनेक्टेड है और 4 से कनेक्टेड है. ये देखो 0 1 से कनेक्टेड है, 0 4 से कनेक्टेड है, 0 जो है वो 8 से कनेक्टेड है, 0 जो है वो 8 से कनेक्टेड है. तो 1 2 3, ओके. सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब 0 to 1, 0 to 4, 0 to 1, 0 to 4, 0 to 8. Similarly, next one, ये वाला 1 हो गया, 1 is connected to 0, 1 is connected to 0, 1 is connected to 5, देखो 1 is connected to 5 6, 1 is connected to 5, 1 is connected to 6 and 1 is connected to 2. Okay, ये देखो 1 is connected to 0 1 2 5 6. So this way we create the graph, and this is the sparse matrix vector multiplication. Okay,
Now tomorrow we'll begin with the topic processes and mapping.